एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਹੋਰੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਰੀ, ਸੰਗੀਤਾ, ਕਵਿਤਾ, ਰਜਨੀ ਹੋਰੀ, ਸਿੰਮੀ, ਸੁਨੀਲ ਹੋਰੀ, ਸੀਮਾ ਹੋਰੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਰੀ, ਪੂਨਮ ਹੋਰੀ, ਪਾਰਸ, ਰੋਹਨ, ਜੈ, ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਹੋਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਾਲ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 26 ਜੂਨ 1938 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਫਰਵਰੀ 1964 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਰੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਰੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਸੰਗੀਤਾ, ਕਵਿਤਾ, ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਰੀ ਜੀ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਹੋਰੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਹੋਰੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪਾਰਸ, ਰੋਹਨ, ਜੈ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਰੋਹਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਨ ਰਾਮ ਵਿਆਖਿਆਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਰਾਮ ਕੀ ਚਰਚਾ, ਸੁਧ ਸੰਗੀਤ ਰਾਮ ਕੀ ਅਰਚਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ मनन राम का चार, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम कथा, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप हे मना अमृत वाणी मार, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, यहाँ हो राम नाम धुन नाम, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तक बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे, राम नाम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल हो, विषम विकट संकट हरन
कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जोजन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूरन काम। चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता माधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सकिन सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहित शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भागे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन दरकार, कष्ट कठोर हो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेद, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की डे, शरण शांति आश्रय है एक। पूजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख राज। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, ऐसो व्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवनिधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत
अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल। राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप। राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति को। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम नाम मंत्र। तंत्र बीज परात्पर अंतर। बीजाक्षर पद परम प्रकाशे। राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलनी बोधे सुषमन खोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नार सहज बहु भार। अज पाजा भीतर हो शाम। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग। चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार। राम राम जप या। सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार। राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत से आने। राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर। जपते राम नाम सब सुख कर। भावन भक्ति भरे भजनीक। भजते राम नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्म भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम पाठ ईमान। करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरती सुर रमाते। राम राम स्वर साथ समाते। देव देवी गण देव विधाता। राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनी जन गाते। स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान। सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान। मिथ्या है मोह कुमद बेताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज। सच्चा है राम नाम जप का। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान। राम राम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार। हुआ जो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल। उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप। शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम। शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप विताप। राम नाम बिना वृथा विहार। धन धान्य सुख भोग प्रसाद। वृथा है सब संपद सम्मान। होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वान। ज्यों हो स्वर बिना राग
जीवन जानो राम। जग की ज्योति जागलमान, राम नाम मिल मोहिनी माया। जीवनहीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक। जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते। बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जनमन में अंधेर। रहे इससे है मम मन, नाम सुमाला से। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला। करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल। राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब याद, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला। लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम नाम जप पाठ, चलते कर्म बंध यथा काट। तान जब राम नाम की टूटे। भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन कह राम नाम का ऐसा, चिंता मनि पारस मनि जैसा। राम नाम सुधा रस सागर। राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज। भव सिंधु में अतुल जहां। राम नाम सब तीर्थ सार। राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर ले भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान। महामोहतम हरे अज्ञान। राम चाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए। राम नाम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देता। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभावं दशमूर्तिवसेमहे देवहितं जलायुः। बोलिए श्री गुरु भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर साक्षात भगवान विष्णु जी के रूप में गरुड़पुराण जी की स्थिति में उपस्थित परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में हम बैठ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं। मुझसे पहले मेरी बहनों ने परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में जो अरदास, जो विनती, जो प्रार्थना की है, वो एक ऐसा रस है जिसकी तुलना हम किसी अन्य से नहीं कर सकते। जब भी कभी कोई प्राणी संकट में, दुख में, कष्ट में होता है तो केवल मात्र एक भगवान राम जी का ही नाम है जो तारने वाला है, अनेक विपत्तियों से उन्हें निजात दिलवाने वाला है। परम सौभाग्य है उस आत्मा का जिसके निमित्त श्री अमृत वाणी जी का ये पाठ
हम सभी लोगों ने किया। और अब ये प्रार्थना करने के परमपिता परमेश्वर श्री अमृत वाणी जी का ये पाठ एवं श्री गरुड़पुराण जी की जो कथा, ये दोनों अमृत तुल्य हैं। और जब किसी भी जीव को अमृत की प्राप्ति होती है तो उसका संसार में आवागमन नहीं होता। शास्त्रों के माध्यम से ये बात स्पष्ट है कि जब तक परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होती तब तक इस जीव को संसार में आना जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। जब जन्म होता है तो मृत्यु होती है, और जन्म और मृत्यु दोनों ही बहुत ही कष्टदायी होते हैं। हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से इसकी चर्चा आई है। जब जीव इस संसार में आता है तो माँ के गर्भ में उसकी क्या स्थिति होती है, माँ के पेट में कितने प्रकार के कष्टों को वो भोगता है। और जब उसका जन्म होता है तो जन्म लेने के पश्चात उस जीव को किस प्रकार अपने संसार में कृत्य करने चाहिए, विशेष रूप से इसकी व्यवस्था हमारे श्री गरुड़पुराण जी में बताई गई है। सर्वप्रथम मैं जो परिवार हैं इनसे दुख साझा करता हूँ। जब माँ का साया बच्चों के सिर से निकलता है, उस दुख को हम अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। संसार में अगर कुछ सुख है तो कहते हैं कि केवल मात्र माँ का जो स्नेह है ये सबसे बड़ा सुख है। जब अभी हमारे धर्म शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या की है तो सर्वप्रथम माँ की वंदना की गई है। माँ एक ऐसा सुख है जिसको हम स्वर्ग लोक में भी प्राप्त नहीं कर सकते, और इस सुख का अभाव इन बच्चों के लिए बहुत ही दुखदायी है। लेकिन ये रीत है संसार की कि जो व्यक्ति जीवन में आता है उसे संसार से जाना होता है। और पुत्रों के लिए, बेटियों के लिए ये बहुत बड़े दुख की घड़ी होती है। लेकिन प्रतिरूप एक दूसरा भी है कि संतान की इच्छा इसीलिए की जाती है कि उनकी संतान धर्म के मार्ग पर चल करके अपने माता और पिता का सर्वप्रथम बहुत सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें एवं संसार के में जाने के बाद जिस प्रकार की जो नित्य क्रिया बतलाई गई हैं उन सभी क्रियाओं को यथाविधि करें। वही पुत्र कहते हैं मानने योग्य होता है, वही संतान कहते हैं आदरणीय होती हैं, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करती हैं। अन्यथा हमारी मुक्ति बहुत मुश्किल है। श्री भगवान जी कहते हैं अगर मुझे आप देखना चाहते हो, मुझे अगर अनुभव करना चाहते हैं तो मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, संबंधों के रूप में मैंने आपको आपके परिवार में ही स्थापित किया है। अब ये संबंध क्या है? माता पिता का संबंध, भाई बहनों का संबंध और जो अन्य दूसरे रिश्तेदारों का जो संबंध है, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और जो भी कोई जीव इन संबंधों का आदर करते हैं, इनका अच्छे ढंग से निर्वाह करते हैं, परमपिता परमेश्वर उन्हें संसार के प्रत्येक सुखों को प्रदान करते हैं। सुख वस्तु में निहित नहीं है,
सुख को कहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। सुख आपके विचारों की एक कड़ी है। अगर हम अपने विचारों को, अपने संस्कारों को निहित करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो समाज में हमें कभी किसी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। और मैं एक बात कहता हूँ कि जिस घर में माता पिता प्रसन्न नजर आते हों, हंसते हुए नजर आते हों, समझ लीजिए कि वो परिवार, वो घर जो है किसी बैकुंठ से कम नहीं है। ना जाने संसार की चीजों को एकत्रित करते हुए हम अपने संबंधों को भूल जाते हैं। परमपिता परमेश्वर ने कहीं ये बात नहीं हमारे पुराणों में कही है कि आप मुझे कुछ दीजिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये उन्होंने हमें दे रखी, हम इसको कहीं किसी को नहीं दे सकते हैं। विद्वान लोग जब कुछ भी चीज भगवान जी के लिए समर्पित करते हैं तो एक मंत्र आता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे परमपिता परमेश्वर, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब आपके द्वारा ही मुझे दी गई हैं। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल मात्र मेरा जो हृदय है वो आपके लिए समर्पित है। आपकी दी हुई चीज को ही मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ। ये जितनी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, जो कथाएं होती हैं, ये अरदास होती हैं, प्रार्थना होती हैं, अर्जी होती है भगवान जी के चरणों में लगाने के लिए। इतनी श्रेष्ठ बात भगवान जी ने कथा के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। दुनिया के कितने भी बड़े यज्ञ कर लो, अगर उन यज्ञ में पवित्रता नहीं है तो वो यज्ञ किसी कार्य के नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए जितना मर्जी कार्य कर लो वो आपके काम आने वाला नहीं है। और जो सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है, सच्चे हृदय से जो कार्य किए जाते हैं, जो सेवा की जाती है, उसकी महिमा भगवान जी कहते हैं कि ऐसे जो पुण्य कर्मा लोग हैं, ऐसे जो धर्मात्मा लोग हैं, उनकी देवता भी पूजा करते हैं, उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। देखिए, संसार में दो वस्तुएं हैं जिससे ये संसार का संचालन होता है। वो कर्म है, और कर्म दो तरह के बतलाए गए हमारे शास्त्रों में। एक सकाम कर्म होता है और दूसरा निष्काम। सकाम जो कर्म होता है, इसमें हम संसार की चीजों की इच्छा करते हैं, और परमपिता परमेश्वर आपकी जैसी बुद्धि है, जैसी इच्छा, उसको पूर्ण करते हैं। जो धन के लिए परमात्मा की आराधना करता है उसे धन की प्राप्ति होती है। संसार की प्रत्येक वस्तु की जो कामना करता है, भगवान जिसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं उसे वो चीजें प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं। लेकिन संक्षेप में परमपिता परमेश्वर ने एक बात कही है कि संसार में जितनी भी चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, ये सभी चीजें, सभी वस्तुएं नश्वर हैं। ये रहने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली है। कहते हैं जब ये आपका शरीर ये भी स्थिर नहीं है, ये भी आपके पास नहीं रह सकता, एक ना एक दिन इस आत्मा ने इसको भी छोड़ देना है, त्याग कर देना है। तो संसार के जितनी भी और दूसरे संबंध है, भला ये हमारे साथ कहाँ तक हमारा साथ दे सकते हैं। इसलिए धर्म का संचय करना परम आवश्यक है। ये हमारा जो शरीर है, इसकी तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। अगर हम इस शरीर को नहीं जलाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जानवरों के खाने से इसकी शरीर की विष्ठा बन जाती है। और अगर हम इस शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, समाप्ति होती है। अगर इस शरीर को अग्निदाह कर देते हैं तो इसकी भस्म बन जाती है। तो विचार कीजिए कि शरीर की अवस्था क्या बन जाती है, और ये शरीर आपके काम का नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक आप इस संसार में बैठे हैं,
कुछ भी आपने अर्जित करना है तो शरीर की आवश्यकता होती है। अच्छे कामों के लिए भी शरीर आवश्यक है और बुरे कामों के लिए भी शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि ममेहि वांछो जीवलोके जीवभूतो सनातनः। संसार में जितने भी प्राणी हैं ये अपने कर्मों के द्वारा कहते हैं बहुत कष्ट में रहते हैं। धनवान लोग भी कष्ट में रहा करते हैं, निर्धन तो रहते ही रहते हैं। अब ये कष्ट किस बात का है, इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? हमारे धर्मशास्त्र में एक रस निकाल करके रख दिया कि जब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपके कष्टों की निवृत्ति नहीं होने वाली है। किसी भी उच्च स्थान पर, देव स्थान पर या किसी धार्मिक जगह पर भी बैठ जाओ, अगर विचारों में धार्मिकता नहीं है, कर्मों में धार्मिकता नहीं है, तो आपका वहां बैठना भी उचित नहीं है। और भगवान जी कहते हैं कि किसी धनवान को स्वर्ग मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्वर्ग और सुख की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति उसी प्राणी को लिखी गई है जो अच्छे आचरण करता है, जो धर्म का अनुसरण करता है, जो अपने बड़े माता पिता, गुरु, आचार्य, बहन, भाई इत्यादि की सभी का सम्मान करता है। जब तक आप पवित्र नहीं हैं, जब तक आपके विचारों में शुद्धता नहीं है, तब तक परमात्मा आपको मिलने वाले नहीं है। सांसारिक जितने भी संबंध हैं इनको अच्छे ढंग से संचालित करो, तब परम गति की प्राप्ति होगी। और परमपिता परमेश्वर तो कहते हैं कि केवल मात्र कथा के सुनने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का नाम लेने मात्र से, कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको हृदय से बोलना जरूरी है, उसको हृदय में स्थापित करना जरूरी है, तभी ये सारी चीजें आप में प्राप्त हो सकती हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा उसे खो देते हैं। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर अहम की भावना आ जाती है, हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, जिसके द्वारा हम अपने अमृत को बिखेर देते हैं, नहीं उसको ग्रहण करते हैं। Good afternoon, everyone. We are gathered here to appreciate and celebrate Rajrani Gauri, who sadly passed away on June 22nd. However, left many wonderful memories with all of us. She was my amazing grandmother, but was also a mother, daughter, and friend for others. Whilst being an amazing human, she always left a smile on your face. She was also a very independent woman, to the point where when she wasn't feeling well, she wouldn't mention it to anyone, but she would still try to do the things she was struggling with and couldn't show. The strength she had inside her, and the attitude not to bother others. The reason for today is to appreciate the human she was and spread her love, as she always put others first and helped who she could. Where all I can ask from everyone here today is to be happy, have fun, and pay the utmost respect to the wonderful woman she was. Thank you all for attending today. Love you, Namaji.